Hello, good morning to all. Today we are going to discuss very important chapter, that is our environment. This chapter is very important and very easy also, and very interesting, you can say. Okay, so let's start this chapter. जो पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे, हमारा चैप्टर क्या है, आवर इन्वायरमेंट. क्या है आवर इन्वायरमेंट? So if you will see, okay, now so our environment. So what do you mean by environment? Environment means what? The things around us, the things, whatever the things present around us, that is called environment. Okay, so we are going to discuss, हम लोग बात करने वाले हैं अभी कि ये हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, और वो चीज़ें किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो चलिए हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित कर रहा है और करता है, वो है हमारे आसपास का पाए जाने वाली चीज़ें जो है वो है वेस्ट मटेरियल्स. तो वेस्ट मटेरियल्स क्या है? जो भी अनवांटेड things which are not usable in our life, जो अभी हमारे यूज़ के लायक नहीं है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्ट मटेरियल बोल रहे हैं. ओके, सो वेस्ट मटेरियल्स, इफ यू विल सी आवर इन्वायरमेंट, देन ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, waste material, that is unwanted substances coming out from houses, factories and hospitals and other sources also. Okay, so human activities produce a lot of waste materials, means unwanted things we are producing each and every day, that is coming out directly or indirectly in the environment. वो environment में आता है. ठीक है, जो भी है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से जा रहा हो. वेस्ट मटेरियल पहले समझ में आया बच्चों? वेस्ट मटेरियल है जो अनवांटेड चीज़ें, जो हमारे काम की चीज़ें अब नहीं रही, उसे हम वेस्ट मटेरियल बोल दिए हैं. ठीक है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल्स है वो हमारे इन्वायरमेंट में डे बाय डे बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो इस वेस्ट मटेरियल अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए. सो दीज वेस्ट मटेरियल्स कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए? व्हाट इज वेस्ट मटेरियल, what is unwanted things which are not in our use, that is waste materials. And waste materials coming out from the human activities, that is from hospitals, from factories, from houses and from other sources also. Okay, and that waste materials contains many different types of, you can say, microorganisms, different types of you can say metals, chemicals which are harmful to us. So that waste materials may pollute, pollution, that is air pollution, water pollution or soil pollutions. Okay, so the waste materials produced are of mainly two types. Okay, they are generally categorized under two types. ये waste material को दो ग्रुप में जनरली बांटा गया है. कौन कौन बेटा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स किसको बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? जो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, द वेस्ट मटेरियल्स विच आर डिकम्पोज, विच आर वी कैन से ब्रेक डाउन into harmless substances by using microorganisms. Okay, like some examples, if you will say vegetables wastes, fruits, pulses, cereals, cotton, jute, wool, these all are the waste materials which can be degraded, which can be break down by microorganisms. That's why we are saying biodegradable waste materials. Okay, but some waste materials which are not degradable, or you can say not break down by the microorganisms, are said to be non-biodegradable. For example, polythene and plastic bag, if you will see, then you will find that polythene bags, plastic synthetics, fibers, glasses, metals, synthetic rubber, insecticides, pesticides, etc., these are not, you can say, break down by the microorganisms. That's why it is called non-biodegradable wastes.
सो सिंपली बच्चों अगर वेस्ट मटेरियल्स की बात करें तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज वेस्ट मटेरियल? द अनवांटेड थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, विच आर कमिंग आउट फ्रॉम houses, factories or different sources, and that waste materials, if that waste materials are not decomposed in a proper way, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से उसको अगर रख रखाव नहीं किया गया, जहाँ पर जिसको रखना है अगर उस तरह से अगर नहीं रखा गया, सपोज दैट फॉर एग्जांपल्स अगर किसी मेटल्स को अगर किसी प्लास्टिक्स को हमें रिसाइकलिंग प्रोसेस में ले जाना है, अगर हम उसे ऐसे जहाँ तहाँ फेंकेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। सो वेस्ट मटेरियल्स का मैनेजिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? जब हम वेस्ट मटेरियल्स के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसका मैनेज कैसे कर सकते हैं? सपोज वी हैव लेकिन जब हमें पता चलेगा कि ठीक है बायोडिग्रेडेबल है तो उसको हम सड़ने गलने के लिए अर्थात यू कैन से दैट कि हम उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स को मैन्योर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन सा है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अगर है तो उसको हम किस प्रोसेस में, रिसाइकलिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं, या फिर किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं सो दैट कैन कॉज लेस harmful इफेक्ट to our environments, to the organisms like plants and animals which are living in our surroundings. So इस सब चीज़ें को हमने ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड्स के अंदर हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा what is waste materials, from where the waste materials is coming out, and what are the challenges regarding waste material. challenges क्या है? अभी challenges है कि जो वेस्ट मटेरियल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसका अगर हम मैनेज नहीं तरीके से करेंगे, अगर सही से नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाएगा, और हमारा इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूट हो जाएगा तो दैट विल बिकम अनफिट फॉर यू कैन से सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, यू कैन से। ओके, तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल जो है उसका मैनेजमेंट करना जरूरी है, और मैनेजमेंट करने के लिए हमें उस वेस्ट मटेरियल्स के बारे में जानना पड़ेगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट आर द नॉन examples of non-biodegradable waste materials? So I think this topic we have finished. Now important questions coming through this topic is, first you have to know differences between, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्वेश्चन आता है differences between biodegradable and non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है वेस्ट मटेरियल, उसको। इसके बाद आता है इसमें कि हाउ कैन वी मैनेज द वेस्ट मटेरियल, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू।